نیوز وائز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان اور میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ. افضل ندیم چند نے آج تحریک انصاف کو جوائن کر لیا اور افضل ندیم چند نے کہا ہے کہ بھٹوازم اگر کوئی تھا تو آج بھی میں بھٹو ہوں, کل بھی میں بھٹو تھا. لیکن نظریے کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ جی میمن صاحب پیپلز پارٹی کے جو تھے ان کے بارے میں انہوں نے نام لے کے کہا ہے, انہوں نے شرجیل میمن کے بارے میں کہا ہے کہ اگر یہ نظریے کا نام ہے تو پھر ایسے نظریے کو میں خدا حافظی کہتا ہوں. دوسری طرف عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پوری پی ٹی آئی کو بڑی خوشی ہوئی ہے افضل ندیم چند کے پارٹی میں آنے سے. اس کے بعد دوسرے حصے میں جا کے قومی اقتصادی کونسل کا بائیکاٹ کیا ہے 3 صوبائی وزراء اعلیٰ نے, یہ کہتے ہوئے کہ بجٹ کا دورانیہ اور ترقیاتی اسکیم میں ہمیں قبول نہیں ہے. تیسرے حصے پہ جا کے بات کریں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کھلا چیلنج دے دیا ہے کہ اگر بجٹ کے روز تقریر کی گئی اور اس تقریر میں پورا سالانہ بجٹ پیش کیا گیا تو وہ تقریر ہی نہیں ہونے دیں گے. بجٹ 4 مہینے تک محیط ہونا چاہیے. آخری حصے میں جاتے جاتے بات کریں گے کوئٹہ میں خودکش کی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی. ارے وہ کونے اور وہ جیلے کیا نظریے کا نام شرجیل میمن ہے؟ اگر نظریے کا نام شرجیل میمن ہے تو پھر میں معافی چاہتا ہوں. فرق یہ ہے کہ نواز شریف کو عمران خان کے خلاف کوئی نہیں گرا سکتا. ندیم وہ سیاستدان جو ہمارے میں شامل ہو رہا ہے, میں آج اس کو یہ داد دیتا ہوں, یہ وہ آدمی آیا جو ساری پارٹی خوش ہوئی ہے اس کی جوائن کرنے میں. ندیم حسین صاحب, ندیم افضل چند کی نظر میں انہوں نے شرجیل میمن کا ہی نام لیا, صرف شرجیل میمن کا نام لیا. انہوں نے کہا اگر نظریے کا نام شرجیل میمن ہے تو میں خدا حافظی کہتا ہوں. اب ایک لحاظ سے دیکھا ہے تو ندیم افضل چند کی نظر میں کیا صرف شرجیل میمن ہی ایسا بندہ تھا پیپلز پارٹی میں جو ان کی تحریک انصاف میں شمولیت کی وجہ بنے؟ دیکھیں یہ تو خیر آج یا سمبولک انہوں نے کیا ہے کہ جی اگر ایسے ہوں تو سمبولک ہے, لیکن وہی بات آتی ہے کہ یہ آج رسم پوری کر دی انہوں نے. یہ تو پہلے سے اناؤنسمنٹ ہو چکا تھا کہ وہ شامل ہو رہے ہیں, اور اس پہ بات بھی یہی تھی کہ جو پنجاب میں آخری کچھ لوگ باقی بچ گئے تھے پیپلز پارٹی کے, وہ بھی اب آہستہ آہستہ ان کی تعداد اب چند بالکل گنی چنی رہ گئی ہے. تو افضل چند واقعی جو ہے ان کی ایک تو بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر نہ صرف لیکن باہر بھی سیاسی حلقوں میں ان کی ایک عزت ہے. اور میں خیال عمران خان نے جو اپنا کامنٹ دیا ہے کہ اس سے پوری پارٹی خوش ہے, کیونکہ جب بھی کوئی نیا بندہ پارٹی میں آتا ہے چاہے وہ خاص طور پہ, تو اس کی ایک حد تک ریزرویشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کو. جب چاہے وہ سرور جو گورنر تھے وہ آئے تھے تو ان پہ بھی خاصی ایک نکتہ چینی تھی. سب اس طرح سے ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ ان کے آنے سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کنٹروورسی ہوگی, اور پھر ایک ان کی سیاست بھی جو رہی ہے وہ ہے. ایک جو آپ نے جو بات کی تھی شرجیل میمن کی, بات یہ ہے کہ جب یہ اس کا جواب تھا جب کہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ یہ نظریہ ان کا چند کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, تو اس کے جواب میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ نظریہ ہے جہاں شرجیل مرزا ایک سمبولک ایک حیثیت بن گئی ہے کہ کرپشن کا جو ایک لحاظ سے جو نظر آتا ہے, جو باتیں آئی تھیں جو خود پیپلز پارٹی کے لوگوں سے آپ بات کر لیں تو وہ بھی آپ کو اس کی 10 گنا زیادہ کہانی بتاتے ہیں شرجیل میمن کی. تو ایک سمبولک اس کی حیثیت ہے کہ جب آپ جس نظریے کی بات کر رہے ہیں اور اس پارٹی میں شرجیل میمن اور اس کی پھر آپ حمایت بھی جاری رکھتے ہیں جو جیل میں ہے کرپشن میں, تو پھر اس نظریے کا کیا کہنا؟ آئی تھنک تھوڑا سا اس میں یہ بھی ایک اینگل ہے کہ اب پنجاب میں خاص طور پر, باقی جگہوں پہ بھی ہوگا, لوگوں کو یہ احساس ہے کہ جب وہ بہت زیادہ پارٹی چینج کرتے ہیں تو اس سے ان کی ذرا ریپیوٹیشن پہ فرق پڑتا ہے اور ایڈورس ری ایکشن آتا ہے ووٹرز کی طرف سے بھی. پھر آپ کو پتہ ہے ٹی وی چینلز پہ بھی بہت کامنٹری ہوتی ہے. ایک بری چیز بن گیا ہے لوٹا ہونا جو شاید پہلے اتنا نہیں تھا. اور اب جب بھی پولیٹیکل لیڈرز سوئچ کرتے ہیں, اسپیشلی ندیم افضل چند جیسے جن کی ایک
जिन्होंने डेफिनेटली एक एफर्ट किया हुआ है अपनी रेप्यूटेशन को मेंटेन करने का, तो उन्हें उसकी सफाई पेश करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि नदीम अफजल चंद के जो ये कमेंट्स थे वो बिलावल को भी एक जवाब था और थोड़ा सा ये उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी की तरफ भी डायरेक्टेड था कि इसमें पीपीपी को मैं नहीं छोड़ना चाह रहा था, मगर मजबूरियां थीं कि वो पॉलिटिक्स करने को तैयार नहीं थे। कि मैंने, जैसे उन्होंने बाद में स्पीच में ये भी कहा कि मैंने बिलावल को कितनी दफ़े कहा आप आएँ पंजाब और नहीं हुआ, तो अब कि आपको ये करना पड़ा है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ रहा है। और दूसरा वही इशू है कि अब पीपीपी जो है वो पंजाब के अंदर इतनी इरेलेवेंट हो गई है कि पीपीपी के अंदर कोई कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन अगर पंजाब में रह गया है तो उसके पास इस वक्त चॉइस जो है वो ये है कि या तो वो क्रिटिसिज्म ना बर्दाश्त करे, लोटा ना कहलवाए और अपनी सियासत ख़त्म करवा ले, या वो पार्टी स्विच करे और कंस्टिट्यूंसी में जीतने की कोशिश करे। एंड आई थिंक नदीम अफजल चंद काफ़ी अरसे से उन्होंने जो है ये स्ट्रगल जो है उसके अंदर उनकी गुजरी है। कोशिश की थी कि शायद पीपल्स पार्टी कुछ बेहतर हो जाए, बहुत उन्होंने कोशिश की, बट वो नहीं हो सका। बिकॉज जब भी वो आए भी हैं आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, तो वो ज़्यादातर वक्त उनका वो जरदारी हाउस में या बिलावल हाउस जो लाहौर में है उसमें गुजरा। अभी इस वक्त कोई भी सियासी जमात का रहनुमा हो या सरबराह हो, वो कोई भी बंदा इस वक्त अखलाकी मॉरल ग्राउंड्स पे ये बात नहीं कह सकता लोटा क्रेसी के ख़िलाफ़, क्योंकि आज ही जदून साहब एक खैबर पख्तूनख्वा से ANP को छोड़ के तो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। कोई किसी जमात को छोड़ के दूसरी जमात में जा रहा है, कोई दूसरी जमात का बंदा निकल के तीसरी जमात में जा रहा है, तीसरी जमात का बंदा निकल के चौथी जमात में जा रहा है। अब कोई भी सियासी जमात या उसका सरबराह इस पोजीशन पे नहीं लगा कि वो मॉरल ग्राउंड्स पे लोटा क्रेसी के खिलाफ बात कर सके। लेकिन उसमें सत्तार वही बात आती है कि इसमें भी एक फ़र्क आता है। जैसे अभी आरफा कह रही थी, बात सही थी कि देखें लोगों पर भी मुनहसर है। अब बात ऐसे हैं जिनकी आदत है कि हर थोड़ी देर बाद पार्टी तब्दील करते हैं, मतलब जो भी इख्तिदार में होता है उनके साथ जाते हैं। इस वक्त PMLN में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कई पार्टियां तब्दील होकर आए, लेकिन उसमें यही बात आती है कि फिर लोगों ने एक नॉर्म सा बन गया है कि जो है वो जी ये तो इलेक्शन से पहले तो होता है कि आप एक पार्टी से तो वो अच्छा उसमें जाने में कोई उनका ढका छुपा भी वो नहीं होता है। वो साफ कहते हैं कि इलेक्शन अगर जीतना है तो हम इस पार्टी में आए। लेकिन वही बात आती है कि जैसे एक अफजल चंद की जो बात हो रही है उसमें ये चीज़ नज़र आती है कि उन्होंने अपनी जहाँ पे उनकी एक लिहाज से रफाकत रही है पीपल्स पार्टी में इतने दिनों की, उसको उन्होंने कंप्लीट उसको ब्रेक उस तरह से नहीं किया कि आप हर चीज़ को गालियाँ दे के या जो अपनी जस्टिफिकेशन दे। शर्जील मेमन उनके हथे चढ़ा था बस बाकियों को उन्होंने मेरे ख्याल क्लीन चिट दे दी होगी कि बाकियों का साथ रफाकत रही होगी। जैसे आपने भी अभी यही बात की ना कि देखिए जब KP में पॉलिटिशियंस ऊपर नीचे हो रहे हैं या पार्टी तब्दील कर रहे हैं वो इतना हाईलाइट नहीं होता मीडिया के अंदर जितना पंजाब के अंदर अब ये हो रहा है। और जितना वहाँ रिलक्टेंटली कई पॉलिटिशियंस स्पेशली अपर और सेंट्रल पंजाब के अंदर करते हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल में उनको ये एहसास है कि पंजाब में अब ये इसकी वजह से हमें नुकसान भी हो सकता है इलेक्शन में। KP में आप नहीं सुनते कि किसी पॉलिटिशियन ने जब स्विच किया तो वो कोई उसकी तफसील दे या कोई जस्टिफिकेशन पेश करे। मैं तो कोई और बात कर रहा था, मैं ये बात नहीं कर रहा था कि इस हवाले से ये सूबा ज़्यादा अहमियत रखता है और इस हवाले से ये सूबा कम अहमियत रखता है। मेरा पॉइंट ये था कि कोई भी सियासी जमात अब बची नहीं है। कोई अखलाकी तौर पे आप इस बात पे मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े नहीं हो सकते। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब ये लोटा क्रेसी और लोटे को, तो फिर आप सिंध में आपने कोई वडेरा छोड़ा ही नहीं। आपने जितने वहाँ पे जो चंद एक गिनती के लोग रह गए थे आपने सबको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। तो जब आप किसी को शामिल कर रहे होते हो, किसी का खैर मकदम कर रहे होते, वेलकम कर रहे हो, तो लोटा क्रेजी कहाँ गई? जब आपका बंदा किसी की जमात में जाता है आपको लोटा क्रेजी का ख्याल आया था। लेकिन वही बात आती है ना कि ये पाकिस्तान में सियासत में एक नॉर्म बन गया है। मतलब होता है ना जैसे कि आपको उस वक्त लगता है जबकि कोई एक लिहाज से गैर मामूली सी चीज़ हुई। ये गैर मामूली चीज़ नहीं होती है पाकिस्तान की सियासत में। अगर आप देखें जब भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले 2-3 महीने का जो वक्त होता है उसमें आपको इस किस्म की जो शिफ्टिंग है पार्टी की चेंज करने की वो आपको मुस्तकिल नज़र आती है। मगर जाहिद साहब एट द सेम टाइम नदीम अफजल चंद की जो पार्टी शिफ्टिंग है इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो इधर उधर चले जाते हैं, ना कोई उस पर ज़्यादा अहमियत देता है ना कोई बात करता है, बट फॉर सम रीज़न नदीम अफजल चंद की एसोसिएशन PPP से कुछ ऐसी हो गई थी कि PTI के लिए ये सचमुच एक बहुत बड़ी
साइकोलॉजिकल विक्ट्री है कि वो उन्होंने पार्टी स्विच की। नहीं, आज आपने देखा नहीं है कि इमरान खान साहब ने वो बात किया जो हम कुछ दिन पहले कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जी चंद साहब आपका तो बड़ी देर से इंतजार था। जी जी, आप तो बहुत 2-3 साल से इसका बात मतलब चल है कि वो रही जो है। 2-2.5 साल जो गुजरे थे, इसका मतलब है 2-2.5 साल गुजरे थे। ये नहीं कि पीटीआई उनको लेना नहीं चाह रही थी, या ये नहीं है कि पीटीआई में जाना नहीं चाह रहे थे। ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का कोई एक हल्का हो जो उनको रोक रहा हो कि कुछ टाइम दे दो, कुछ वक्त दे दो, चले हम आपको पंजाब में। पीपीपी ने मेरे ख्याल में बहुत कोशिश की, और उसकी वजह यही थी कोशिश की कि मैं 3.5-4 लोग रह गए पीपल्स पार्टी के पंजाब में, जो मैटर इस तरह कर रहे होंगे कि यार ये। वैसे अगर आप काउंट करें, सॉरी बट अब कायरा और नदीम अफजल चंद को छोड़ के कोई बड़े लोग रह गए हैं पीपीपी पंजाब में, क्योंकि भट्टू साहब या मखदूम अहमद महमूद के अलावा कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। उनकी अपनी सीट्स हैं, यूसुफ रजा गिलानी है और राजा परवेज अशरफ। लेकिन वो सवालिया निशान उठता है कि यूसुफ रजा गिलानी वेदर ही विल मैनेज, कि वो मैनेज कर सकेंगे। एब्सेंट रहे हैं उनकी गैर हाजिरी में दूसरे लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, लोग खुश हुए नहीं हुए, उस बहुत सारे सवालिया निशान हैं। बट एटलीस्ट लेकिन मखदूम अहमद महमूद पे सेफ बैठ हो सकती है। हाँ, बट वो तो उनकी अपनी सीट्स हैं, वो उनकी अपनी सीट्स हैं। तो साउथ पंजाब की जो सियासती भट्टू साहब की भी जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनकी भी कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कोई लॉन्ग टर्म एसोसिएशन नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है कि उनकी कोई लॉन्ग टर्म पीपीपी से उस तरह की एसोसिएशन नहीं है कि आप कहें आएंगे या जाएंगे तो पीपीपी को कोई धचका उस तरह लगेगा। कायरा और नदीम अफजल चंद नहीं, भट्टू साहब की वजह से पीपल पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था जब भट्टू साहब 17-18 एमपीए के साथ चीफ मिनिस्टर बन गए थे। मेजोरिटी पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन वो मतलूबा तादाद जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी, वो इनके पास थी। फिर ये 95 में वो आखिरी चांस था पीपल्स पार्टी को एक हुकूमत मिलने का पंजाब में, लेकिन सिर्फ इन्हीं की वजह से ना, और उसकी वजह से ज्यादा डैमेज हुआ था कि आने वाले वक्त के लिए पीपल्स पार्टी का थोड़ा बहुत चांस था। लेकिन वो भी किसी हद तक वही पीपल्स पार्टी के जो लोग आए, मंजूर भट्टू एक सिंबल है उनका भी, कि जो है जो सरदारी के आने के बाद, आसिफ अली सरदारी के सदर बनने के बाद जो पार्टी का पूरा वो चेंज हो गया था। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बाद वापस पे बात करेंगे कि 3 वज़रा आला ने इक़्तिसादी काउंसिल, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का बाइकआउट किया। कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर बात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पीएसडीपी को अप्रूव नहीं किया गया और हमारे वॉकआउट करने के बाद जो फोरम है वो भी टूट गया था। तो एनईसी की मीटिंग उसके बाद अगर कुछ हुआ है तो वो गैर आईनी है। वो रिकमेंडेशन हम लोगों ने दी है, वो रिकमेंडेशन एक भी नहीं मानी गई। उसमें अपनी मर्जी के स्कीम्स ऐड किए। नई स्कीम हमारे सुबह में शाह साहब के और सब में केपीके का कोई भी मेरे ख्याल में नया स्कीम था ही नहीं। वेलकम बैक टू द शो। जी ज़ाहिर हुसैन साहब, अब ये बड़ा टेक्निकल सी चीज़ होती है कि आप एकदम से बाइकआउट करते हैं, फिर आप अपनी पसंद की बात करेंगे ना कि भाई फेडरल गवर्नमेंट ने ये किया, फिर फेडरल गवर्नमेंट अपनी तरफ से आएगी, वो अपनी पसंद की बात करेगी कि राय आमा को एक्चुअली टारगेट किया होता है। हालांकि इनके जो ये पीएसडीपी का जो चक्कर है, इसका जो भी है, वो एक मैं ट्रेंड देख रहा था कि जो जुलाई से लेकर और फरवरी तक 8 महीने में 550 बिलियन रिलीज़ हुए। अब बाकी 450 बिलियन वो 4 महीने में रिलीज़ होना, तो ये इस एक जगह पे देखा जाए तो मुताबिकत नहीं रखते। दूसरी जगह पे जो स्पेशल एलोकेशंस होती हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का वो गोल्स, मिलेनियम गोल्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलपमेंट फंड होता है, उसमें 50 के 50 बिलियन जो थे ना, उन्होंने सिर्फ पहले सेमेस्टर में 3 महीने में वो थ्रू मेंबर पार्लियामेंट खर्च कर दिए। अब देखें, कुछ ऐसा होता है कि मैं वही बात करूंगा ना जो जिससे मुझे फ़ायदा होगा। अब जो राय अम्मा है, आपने उसको हमार करना ना अपने हक में। टेक्निकलिटी तो बहुत कम बंदे जानते हैं। इसमें ये नहीं आ रहा है। देखें, ये जो है ये इसकी ख़ास वजह है, जो भी तनाज़ा पैदा हो रहा है वो तो रहा है, वो सिलसिला होता है कितने अरसे में आप खर्च करते हैं नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ जो है वो इसलिए आई है, तनाज़ा बन के आ रहा है ज़्यादा सीरियस। वो ये है कि अब इलेक्शन में चंद महीने रह गए हैं और उसमें यकीनी तौर पे पहले भी जो है
इस किस्म की डिस्कशन ज़रूर होती रही हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में और इकनॉमिक काउंसिल में, दोनों जगह पे जो है सूबों की नुमाइंदगी होती है। तो उसमें आम तौर पे जो एक तो ये है कि PSDP जिसको कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसका तो बहुत बड़ा हिस्सा अब सूबों में चला गया है। अच्छा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी हैं बड़े जो है जो कि आपके पास फेडरल गवर्नमेंट में। तो मेरे ख्याल ये था कि इस हुकूमत को ख़ास तौर पे इस पे एहतियात बरतनी चाहिए थी कि अगर उनका एक ऑब्जेक्शन जो है वो एक हद तक जायज़ है कि आपने एक सूबों को ज़्यादा जो है उस पर वो किया है। अब ये इलेक्शन होने वाले हैं, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, बजट तो पेश करना है, टेक्निकल एक इशू बन के आता है और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि 4 महीने का बजट या 3 महीने का बजट जो है वो हो सकता है। फिर वही मेरे ख्याल जो पहले भी एक आई इमरान खान साहब ने बात की थी कि हम बजट ही नहीं पेश करेंगे, अब ये आ रही है बात कि 3 या 4 महीने का बजट हो। इस तरह से 3 और 4 महीने का नहीं होता है। वो अलग बात है कि नई हुकूमत जब आती है तो उसको ये हक़ पहुँचता है पार्लियामेंट के ज़रिए कि बाज़ उसमें तरामीम कर सके। आई थिंक इसमें ECC के अंदर तो थोड़ा सा ज़्यादती फेडरल गवर्नमेंट की ये है कि ट्रेडिशनली कंसेंसस से यहाँ फ़ैसले होते चले आए हैं, तो इस दफ़े भी उनको इसी तरह करना चाहिए था। बट फेडरल गवर्नमेंट भी अपनी मर्ज़ी की मालिक है। अब ये कह देना वो उठ के चले गए हैं, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, तो आप पीछे से कहें कि जी इसकी तो सिर्फ एक एडवाइजरी कैपेसिटी में थी और हमारा ही फ़ैसला होगा। तो एक तो ठीक है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, मगर उसके बावजूद कुछ ना कुछ एफर्ट एक फेडरल गवर्नमेंट भी करे कि वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बावजूद काम तो चलता रहे। मगर बिल्कुल उनको कह देना कि वो भी अगर बॉयकॉट करके चले गए तो कि अच्छा आपकी हमें ज़रूरत ही नहीं है और क्वोरम अगर नहीं पूरा तो हम उसके बगैर भी फैसले कर लेंगे, तो दिस इज़ नॉट रियली कंड्यूसिव टू एनी काइंड ऑफ कोऑपरेशन। तो थोड़ा सा ख्याल मेरे ख्याल में मरकज़ी हुकूमत को रखना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन से पहले इस वक्त है एक एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा हमारी वो पोलराइज हुई है, तो क्या ज़रूरत थी कि उसमें इस पे भी खड्डा कर दिया। नहीं, वैसे नई स्कीम्स के बारे में जब वो कह रहे थे कि पहले इन्होंने कहा कि जी जो अप्रूव्ड कॉस्ट का 20% से कम रिलीज़ होगा उस पर आपने खर्चा नहीं करना। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि नहीं जनाब लेस दैन 25%। अब एक जगह पर आप देखें किसी जगह पे जाके आपका कंसेंसस हो रहा है और किस कंसेंसस हो रहा है जिससे आपका जो बाद में लिया जाने वाला स्टैंस है उसकी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती। लेकिन इसमें सत्तार इसमें जो 3 चीज़ें बुनियादी थी, जो कल की जो मीटिंग और उसके बाद जो बायकॉट हुआ, उसमें आरफा सही कह रही थी कि जो सूबों की तरफ से जो बात आ रही थी वो सही है कि अगर आप इतना हेवीली टिल्ट करते हैं एक सूबे के, ख़ास तौर पे इस वजह से कि उसका एक सामने रखा हुआ आपने आइंदा इलेक्शन का एक, ये तो ज़रूर है ना, जब बजट पेश होगा तो ये तो PMLN का बजट होगा और फिर वो जो है उसके ज़रिए जो है आप अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसी चीज़ें देते हैं पंजाब को और ख़ास तौर पे, तो वो तो आपके वोट पे असर तो पड़ेगा कि आपने अपील कर रहे हैं, पॉपुलिस्ट बजट भी लेके आ सकते हैं। एक तो इनकी ये बात सही थी कि जब इसमें है तो उसमें आपको ज़्यादा एक कंसेंसस की ज़रूरत थी ताकि वो जो आगे चल के जो है दूसरी हुकूमत आती है उसके लिए भी कुछ एक जगह खाली हो। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है कि कॉमन CCI की जब मीटिंग होती है तो एक जो अजीब बात की गई है मुफ्ती इस्माइल ने कि उनकी ज़रूरत ही नहीं थी या कोरम की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर कोरम की ज़रूरत नहीं थी तो इसको मीटिंग को क्यों नहीं बुलाया। लेकिन एक अच्छी बात जो इसमें हुई है कल की मीटिंग में, बावजूद इन तमाम चीज़ों के तनाज़ुर का, जो है एक वाटर जो चार्टर ऑन वाटर जो है हुआ है वो मेरे ख्याल एक लैंडमार्क पाकिस्तान वाटर चार्टर पाकिस्तान वाटर चार्टर वो एक लैंडमार्क इस लिहाज से है कि पानी का जो मसला है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है और ख़ास तौर पे जो आपके क्लाइमेट चेंज जो असर पड़ रहा है, तो ये एक इतना बड़ा क्राइसिस है जिस पे हमने बहुत पहले इस पे कुछ सोचना चाहिए था। इसमें सारे डैम्स का बनने का आता है, एक कम से कम जो है कल अच्छा फैसला हुआ है। मगर देखें ना PMLN की हुकूमत भी कमाल है, 4.5 साल गुजार के आखिरी 3 महीनों में उनको सब अच्छी बातें याद आ रही हैं। ये पहले अगर कुछ कर लेते तो बेहतर ना होता। दूसरे थे ना वो ये ऑपोजिशन के वजीर आजम है। वजीर आजम में देखिए तब्दीली से बहुत बड़ी तब्दीली भी आ गई है। नहीं वही तो कह रही हूँ कि तो ऑपोजिशन के वजीर आजम है, क्योंकि लग ही नहीं रहा कि कोई कंटिन्यूटी है किसी किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी। एक ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद फिर आप इस बात को यहाँ पे जो बात हो रही थी ना इस हिस्से में, इसको भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बात करेंगे वो शाह महमूद कुरैशी ने तड़ी लगाई है, धमकी दी है कि जनाब वो बजट तकरीर ही नहीं होने देंगे अगर वो साल तक मुहित हुआ वो बजट। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद
बजट पेश कीजिए, 1 क्वार्टर का, 4 माह का बजट पेश कर दीजिए और फिर अगली हुकूमत को जो मुंतखब होकर आएगी उसे फैसला करने दें। जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से इसको पास करवाया गया, मैं समझता हूँ वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था। और अगर इसकी बुनियाद पर ये बजट पेश किया गया, मैं बांगे दुहल कह रहा हूँ कि एज पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पीटीआई मैं ये बजट पेश नहीं होने दूंगा, मैं वजीर खजाना को तकरीर नहीं करने दूंगा। वेलकम बैक टू द शो। ये किस तरह मुमकिन हो सकेगा कि तकरीर ही ना करने दें शाह महमूद कुरैशी? कोई किस तरह मुमकिन है? फिर देखा जाए तो क्या ये उनको रोकेंगे, पकड़ेंगे, क्या करेंगे? ये जितने नंबर हैं, जितने इनके पास, जितनी तादाद में इनके पास लोग हैं, उनके पास तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर ये फिज़िकली भी उनको रोकने की कोशिश करेंगे या उसकी तकरीर पढ़ के फाड़ देंगे, वो ज़ुबानी याद करके नहीं आए होंगे, क्या होगा? एक तरीका, कोई तो एक तरीका होगा ना कि वो ये तो कहने की बात है ना, जब ये आप कहते हैं नहीं, उन्होंने कहा बाबंद दोहल में बात कर रहा हूँ कि नहीं करने दूंगा। वही बात है, उसको डर था कि ये ना कह दे अगर मैंने तकरीर करने दी तो मैं रिजाइन कर दूंगा। आपने जो वही बात की है कि कोई क्या करेंगे, ज़्यादा एहतजाज कर सकते हैं, जो कि एक लिहाज से एक नॉर्म पाकिस्तान में जो बजट पेश होते हैं उसमें ज़्यादातर यही होता है कि अपोजिशन खड़े होकर शोर मचाती है, बाज़ दफ़ा बजट की कॉपियाँ ही फाड़ती। पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो बात करें कि मैं बिल्कुल नहीं पेश होऊंगा, तो वही बात आती है कि फिजिकली तो नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। बजट पेश होगा, ये लोग शोर ज़रूर करेंगे और उसको जो है वही हंगामा ज़रूर होगा। लेकिन अब वही मसला आ रहा है ना कि ये थोड़ी सी उसकी नौइयत मुख्तलिफ है। जो कि पहले बजट में हंगामा होता था, उसमें अपोजिशन जो है एक अपना एक रवायत कायम रखती थी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जो सवाल है कि वो 4 महीने और साल भर का बजट होगा, वो मुझे कहीं लगता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में ना चला जाए, क्योंकि जो हमारी आदत पड़ गई है ना कि हर चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करते हैं कि भाई उनको ये हक है या नहीं है, और जो कि गलत बात होगी अगर गई। नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली एटलीस्ट जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि कोई ये चीज़ है कि आप 4 महीने का सिर्फ बजट पेश करें। बजट तो साल का ही पेश तो क्या किया आप जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं पता? नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो अभी रिसेंटली पता चला। पंजाब का बजट एक जमाने में नवाज शरीफ के दौर में वो खुद करते थे। बट शाह महमूद कुरैशी को ये बात जो है साल वर्सेस 4 महीने की, ये कुछ दिन पहले ही पता चली, क्योंकि कब से बात हो रही है कि PMLN पेश होगा। नहीं, बट इनिशियली जब PMLN ने कहा कि हम बजट पेश करेंगे और हम अप्रैल के अंदर पेश कर देंगे, तो तब तो इन्होंने शोर नहीं डाला। ये तो जरा ज्यादा रीसेंट शोर है, तो क्लियरली इनको भी जो पता चला है रिसेंटली मालूम हुआ है। और वही जो जाहिद साहब बात कर रहे थे, ये तो रूटीन हो गई है कि पार्लियामेंट में जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन शोर मचता है। पंजाब जो थे कि ये जब लड़ाई हुई थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की किसी पीटीआई के आदमी से, वो क्या बजट के दिन तो नहीं थी? वही लग रहा है मुझे भी याद है, एक बहुत वो अफरीदी से फिजिकल हो गए थे ऑपोजिशन बेंचेस के सामने। उससे पहले अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि हम फिजिकल होंगे। ये तो बाकायदा वो जिस तरह का एक बयानिया दे रहे हैं तो होती है भाई, अनाउंसमेंट होती है। नहीं, ये अनाउंसमेंट पहले मैं जिंदगी में पहली दफा सुन रहा हूँ कि मैं देखूंगा कि तकरीर कैसे करते हैं। पहले कभी सुना नहीं आपने? पीपीपी की जब एक दफे बजट की प्रेजेंटेशन हो रही थी, मुझे अभी याद है, इतना इन्होंने PMLN वालों ने शोर डाला था। और वो एक और होता है, नहीं टू द एक्सटेंट कि इट वाज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड। इन्होंने पहले से फैसला किया हुआ था कि इतने मिनट हम शोर डालेंगे, उसके बाद हम वॉकआउट कर जाएंगे, तो उसके बाद तुम लोग अपना बजट की डालना, वॉकआउट करना, फैसला करना एक और है। उन्होंने यहाँ पे कमर पे हाथ रखा हुआ था जब आप देखें शायद शाह महमूद कुरैशी को, उन्होंने कहा मैं देखूंगा कैसे वो करेंगे। ये पहली दफा मैं सुन रहा हूँ, आपने कभी सुना पहले? बिल्कुल सही बात है कि रोकने के कई अंदाज हैं। वो तो अनअनाउंस भी जो है वो हंगामा करते हैं, बाज़ दफ़ा जो अनाउंस करके भी हंगामा नहीं हो सकता है। देखिए बुनियादी तौर पे ये सियासत के या मैक्सिमम होगा जो तमीना दौलताना थी जब उन्होंने दुपट्टा उछाल दिया इस किस्म का फारूक अहमद लगारी के ऊपर, वही होती रही है। क्या है वो अनाउंस करें या अनअनाउंस करें, हंगामा ज़रूर होगा। लेकिन ये कहना कि जो है मैं उनको देख लूंगा, किस तरह रोकूंगा, मैं ख्याल ये बड़ा अजीब सा है। इसका मतलब है कि ये ज्यादा अहमियत इन्होंने ज़हन बनाया हुआ है पहले से। मुशर्रफ की स्पीच कितने साल पार्लियामेंट में हुई नहीं मेरे ख्याल में, एक दफा हुई थी, आपको याद है हंगामा कितना हुआ था? मुक्के दिखा के गया था। हाँ, वही तो कह रही हूँ कि गो बाबा गो, जो आप बात कर रहे थे तमीना दौलताना की, तो ये तो पार्लियामेंट की हमारी रिवायत कैसे है। और बजट के ऊपर तो बजट की कॉपी फाड़ना और तमाशा करना, क्या करेंगे? मतलब
آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں رانا افضل کو جو ہے نا مار نہیں، اب رانا افضل مجھے نہیں لگتا کہ رانا افضل تگڑے ہیں ان سے یا یہ تگڑے ہیں ان سے، کیونکہ ممبر پارلیمنٹ ہے، کوئی پلوان تو ہے نہیں، نا باکسر ہے نا ریسلر ہے. ایک دفعہ یہ ان کی کیا کہتے ہیں یہ کھر مصطفیٰ کھر نہیں ہنا ربانی کھر نے بھی ایک بجٹ پیش کیا تھا جی بالکل، جب ڈپٹی منسٹر فار اکنامک افیئرس تھیں، اور مجھے اس کا ابھی تک ذہن میں یاد ہے کہ وہ پڑھتی آ رہی ہیں اور سارا جو ہے پورا ہال وہ اکثر ویسے دیکھنے میں آیا کہ آپ پڑھتے رہو دھیان ہی نہ دو. تھوڑی کوئی رہا ہوتا ہے بس ایک چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم جائیں گے خودکش حملے جو کوئٹہ میں ہوں اس حوالے سے. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. جی زاہد حسین صاحب، کوئٹہ خودکش دھماکے. اچھا، یہ ایک ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک زمانہ آتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، پھر ہوتا ہے کہ ایک دم ہی ایک ہی دن میں یا 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں اچانک ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک ٹرینڈ ایک ہے جو کبھی کبھار نمودار ہوتا ہے. دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ پچھلے 1-2 سال سے جو اوور آل پاکستان کے اس میں جو ہے اس قسم کے حملوں میں بہت کمی آئی ہے، یہ ہے. لیکن کوئٹہ میں جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. یہ جو ہے خاص طور پہ پولیس والوں پہ اٹیک تو بہت بڑھ گئے، کیونکہ سب سے زیادہ ونریبل وہی ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں پچھلے 1 سال کے اندر تو آپ کو ایسے جو ہے کئی ایسے حملے ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی، اب ایک زمانے میں ہزارہ جو تھے وہاں کمیونٹی، اس پہ بہت زیادہ اٹیک ہوتے تھے، کچھ کم ہوا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند ہفتوں سے پھر ایک تیزی آئی ہے. تو کوئٹہ میں تو اب یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ آف اینڈ آن جو ہے وہ چیزیں جاری رہتی ہیں. اور یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ جو ہے پہلے کوئٹہ میں اس قسم کے واقعات سب سے کم ہوتے تھے. مطلب اگر فرض کیا چاہے وہ سیکٹیرین کانفلکٹ ہو یا وائلنس میں ہو تو کے پی میں واقعات ہوتے تھے، پنجاب میں ہوتے تھے اور کراچی میں بھی. لیکن یہ کوئٹہ جو پچھلے چند سالوں سے لگتا یہ ہے کہ بالکل سینٹر آف آل ایکٹیویٹیز جو ملیٹنٹس کی مختلف لوگوں کی ہے وہ ہو گئی ہے. اب اس میں جو ہے کئی اور بھی تنظیمیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو جن کا داعش کا تعلق تھا سیکٹری، تو انہوں نے جو ہے افغانستان میں جو ہے سے آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے کرتے ہیں. لیکن اصل بات ہے کہ ایون افغانستان سے بھی اگر آپریٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک بات آتی ہے کہ انٹیلیجنس پہ اور لا انفورسمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ناکام بھی بنا دیے. لیکن یہ کہ یہ بھی تو انسرجنسی کا ایک مسئلہ ہے ہی صحیح کہ اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے بہت سال لگتے ہیں، جس طرح وہ اس کے شروع میں بھی بہت سال لگتے ہیں. مگر وہی مسئلہ ہے کہ پھر آپ جتنے مرضی بھی روک لیں، the one attack that gets through creates question marks. تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جتنے ہوئے ہیں اس سے کوئی 10 گنا زیادہ روکے ہوں، مگر جب وہ ایک اٹیک ہوتا ہے یا 2 اٹیک ہوتا ہے، چاہے وہ سوئسائڈ بامبنگ ہو چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو، اس سے ایک دم پھر وہ سوال تو اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری انسرجنسی کے خلاف موومنٹ جو ہے، یہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ کتنے سکسیسفل ہیں نہیں ہیں. ہم نے کے پی میں یہ بہت ہوتے دیکھا، ہم نے بہت سال یہ ڈیبیٹ کیا کہ کتنی ایفیکٹو ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. وہ ساؤتھ وزیرستان انہوں نے صاف کیا ہے تو وہ نارتھ میں چلے گئے، نارتھ صاف نہیں کریں گے تو ختم نہیں ہوں گے یا بلو بیک ہوگا. بٹ وہی بات کہ اب باقی ملک میں شاید اتنی حالت بہتر ہو گئی ہے کہ کوئٹہ کے اندر جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ اور زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. اس میں جو زاہد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ایک اتنے عرصے سے یہ نہیں ہو رہا تھا، دہشت گردی کی ایک لہر ایک اور ہوتی ہے، انسرجنسی ایک بالکل اور ہوتی ہے. اس میں جو کے پی کے میں ہو رہا تھا یا کوئی اور علاقوں میں ہو رہا تھا، اس کا اس میں ذرا فرق اس لیے ہے کہ یہاں پر جو ایک یہ معاملات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے وہ عوامل کار فرما نہیں ہیں جو باقی اتنے عرصے سے ہوتے ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا جو وقت ختم ہو گیا، حالانکہ آخری 3 منٹ آپ کے ہوتے ہیں، ہمیں اس میں ڈنڈی نہیں مارنے چاہیے، یہ وقفہ آپ کو کر دینا چاہیے ہمیں ٹائم. اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے، عارفہ نور صاحبہ کو بھی اجازت دے دیں اور زاہد حسین صاحب کو بھی اجازت دے دیں. کل دوبارہ 7 بجے آپ کے سامنے پیش ہوں گے. خدا حافظ.